Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your UPSC CSET comprehension practice, and in this series we are covering the previous year passages from the year 2017, and we'll be looking at the second part of the PYQs from the year 2017. We'll be covering four good comprehension passages in this session, and we'll be looking how to eliminate and find out the answer for these passages. So don't forget to like the session and don't forget to subscribe to our channel if you're new here. So let us begin guys, but before we go any further, let me tell you about the comprehensive guidebook that can help you in your preparation, in your journey ahead. Now this guidebook entails everything from strategy to syllabus to sources and everything you need to prepare for all the subjects of CSAT exam. So this book is absolutely for free for you. You can go and download this book from the link that has been given in the description of the video. So go check it out and download it and get benefited from this book. So it's a very useful guidebook, and it will definitely help you in the long run. So coming back to our passages, so let's read the passages and let's try to solve them. So what is the approach? First, only read the question. That will tell you what is the demand of the question, and then we can read the passage from the same perspective. So the question is the keynote that seems to be emerging from the passages. So we have to find the keynote, that is, the crux, the central theme, the gist of the passage. So that is to be found out. So let's look at the passage now. The man who is perpetually hesitating which of the two things he will do first will do neither. वो क्या कह रहा है कि वो इंसान जो हमेशा हिचकिचाता रहता है ये सोचते हुए कि मैं क्या करूं, मतलब पहले मैं क्या करूं या मैं ये करूं या वो करूं, मतलब बेसिकली somebody who cannot decide. So a man who is perpetually hesitating which of the two things he will do first will do neither. वो क्या कह रहा है कि जब एक इंसान यही हिचकिचाहट में रहता है कि मैं दोनों में से कौन सी चीज पहले करूं, वो दोनों ही नहीं करता है. द मैन हु रिजॉल्व्स, लेकिन वो इंसान जो दृढ़ता से अपना निश्चय बनाता है, रिजॉल्व बनाता है. द मैन हु रिजॉल्व्स बट सफर्स हिज रेजोल्यूशन टू बी चेंज्ड बाय द फर्स्ट एनकाउंटर suggestion of a friend who fluctuates from opinion to opinion and veers from plan to plan can never accomplish anything. और फिर वो बात कर रहा है, लेकिन वो इंसान जो निश्चय तो बना लेता है लेकिन पहले पहले ही किसी की सलाह सुनी और अपना प्लान बदल देता है. who fluctuates from opinion to opinion and veers from plan to plan, he also can never accomplish anything. कि ऐसा इंसान भी कभी भी कुछ अकम्प्लिश नहीं कर पाते. मतलब एक तो वो इंसान है जो चूज ही ना कर पाए, फिर वो इंसान है चूज कर ले लेकिन दूसरों की बात सुन के अपना इरादा बदल ले, वो भी कुछ नहीं कर पाता. ही विल एट बेस्ट बी स्टेशनरी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, स्टेशनरी मतलब एक जगह पे खड़ा रहेगा. एंड प्रोबेबली रेट्रोग्रेड इन ऑल, और बाकी हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होता रहेगा. इट इज़ ओनली द मैन हु फर्स्ट कंसल्ट्स वाइजली, लेकिन अब उसने सही बात बताई है कि वो इंसान, इट इज़ ओनली द मैन हु कंसल्ट्स वाइजली, सबसे पहले वो ध्यानपूर्वक सबसे सलाह लेता है, देन रिजॉल्व्स फर्मली, और फिर दृढ़ता से अपना निश्चय बनाता है, एंड देन एग्जीक्यूट्स हिज पर्पस, और फिर अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है अपने पर्पस के लिए, विद इनफ्लेक्सिबल परसेवरेंस, मतलब बहुत ही दृढ़ता से, अनडिसमेड बाय दोज पेटी डिफिकल्टीज, जो मुश्किलें आए उनको जीतते हुए, विच डोंट अ वीकर स्पिरिट, ऐसी मुश्किलें जो एक वीक इंसान को डराती हैं, उनको लड़ते हुए जो इंसान आगे बढ़ता है, दैट कैन एडवांस टू एमिनेंस इन एनी लाइन, वो इंसान किसी भी लाइन में आगे निकल सकता है. तो पहले सलाह करे, फिर अपना दृढ़ता से निश्चय बनाए, और फिर उस निश्चय को एग्जीक्यूट करे, और बीच में जो परेशानी आई उनसे ना हिले ना डगे. तो उस वो इंसान है जो आगे जाके किसी भी लाइन में अपने आप को सक्सेसफुल बनाता है. सो जो की नोट है इस पैसेज में से वो क्या निकल के आ रहा है, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं अपने. वी शुड फर्स्ट कंसल्ट वाइजली एंड देन रिजॉल्व फर्मली, ये कहना चाह रहा है. ओके. वी शुड रिजेक्ट सजेशंस ऑफ फ्रेंड्स एंड रिमेन अनचेंज्ड, कि हमें किसी का सजेशन लेना ही नहीं चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं कह रहा. वो कह रहे वी शुड ऑलवेज रिमेन ब्रॉड माइंडेड, हमें हमेशा ब्रॉड माइंडेड रहना चाहिए, मतलब सबके सलाह सुनते रहना चाहिए. नहीं, फिर तो निश्चय ले ही नहीं पाओगे. वी शुड बी रेजोल्यूट एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड, कि हमें दृढ़ता से काम करना चाहिए और अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, कि भाई जो हमारी अचीवमेंट है वो हमारा दिशा होनी चाहिए, मतलब वो हमारी मानसिक दशा होनी चाहिए. तो अब ए और डी में कंफ्यूज थोड़ा सा चॉइस में है, तो देखते हैं. वी शुड फर्स्ट कंसल्ट वाइजली एंड देन रिजॉल्व फर्मली, ये कह रहा है पैसेज, या वी शुड बी रेजोल्यूट, हमें दृढ़ होना चाहिए और अपने अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, हमें किसी की सलाह नहीं लेनी चाहिए. नहीं, तो सही बात है. वो क्या कह रहा है कि वो पहले सलाह लो सबसे, फिर अपना निश्चय बनाओ और उसमें अडिग रहो. सो आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट की नोट, जो कि पैसेज में मेंशन भी है. अचीवमेंट ओरिएंटेड कहीं पे मेंशन नहीं था गाइस, ठीक है. तो यहाँ पे मेंशन था
रेजोल्यूट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो रिजॉल्व फर्मली भी दिया हुआ है और कंसल्ट वाइजली भी दिया हुआ है। जैसे उसने बोला इस सेंटेंस में, इट इज ओनली द मैन हु फर्स्ट कंसल्ट्स वाइजली, देन रिजॉल्व्स फर्मली एंड देन एग्जीक्यूट्स हिज पर्पस विद इनफ्लेक्सिबल परसेवरेंस, undismayed by those petty difficulties which daunt a weaker spirit that can advance to eminence in any life। ठीक है, तो ऐसे पैसेज को पढ़ के अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर्स तक पहुंचना होता है हमें। चलो गाइस नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। which among the following is the most crucial message conveyed by the above passage? क्या मैसेज कन्वे किया है पैसेज में, पढ़ते हैं एक बार पैसेज। Why do people prefer open defecation and not want toilets, or if they have them only use them sometimes? भाई क्यों ऐसा है कि लोग टॉयलेट्स को ना यूज करके ओपन डेफिकेशन पसंद करते हैं, या अगर टॉयलेट्स हैं भी तो उनको कभी कभार यूज करते हैं। रिसेंट रिसर्च हैज शोन टू क्रिटिकल एलिमेंट्स, एक रिसर्च ने दो एलिमेंट बताए हैं इसके, दो रीजन बताए हैं इसके। एक तो आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशंस and not wanting pits or septic tanks to fill, they have to be emptied। तो कह रहे इसके दो रीजन है, एक तो भाई खुले में वो कहते हैं भाई प्योरिटी है, भाई पोल्यूशन और मतलब बंद रहोगे तो पोल्यूटेंट है और खुले में रहोगे तो प्योरिटी है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर वो सेप्टिक पिट जो है, जो पिट है या टैंक है, अगर वो भर गया, ठीक है, तो फिर उसको खाली करना पड़ेगा, वो कौन झंझट चले, इससे अच्छा क्या है कि खुले में चले जाओ। दीज आर द इश्यूज दैट नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट, ये वो इशू है जो कोई भी जिसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बट इफ वी वॉन्ट टू इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ ओपन डेफिकेशन, लेकिन अगर हमें ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में मलमूत्र करने की जो हैबिट है, जो आदत है, प्रैक्टिस है, अगर उसको खत्म करना है, दे हैव टू बी कन्फ्रंटेड एंड डेल्ट प्रॉपरली, कि उनका सही से सामना करना पड़ेगा और उनके साथ डील भी हमें दृढ़ता से करना पड़ेगा अगर हमें ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम से फाइट करना है तो क्या मैसेज दिया है उसमें? द आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन आर सो डीप रूटेड दैट दे कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल। ये कह रहा है कि भाई वो निकाले नहीं जा सकते, नहीं, ये मैसेज नहीं दे रहा। मैसेज तो उसने क्या दिया है कि हमें इसको डील करना पड़ेगा इससे। पीपल हैव टू परसीव टॉयलेट यूज एंड पिट एम्प्टिंग एज क्लीन एंड नॉट पॉल्यूटिंग, कि लोगों को समझना पड़ेगा कि टॉयलेट यूज और पिट एम्प्टिंग सफाई का हिस्सा है, ना कि पॉल्यूटिंग का। पीपल कैन नॉट चेंज देयर ओल्ड हैबिट्स, ये फिर वही एक्सट्रीम ऑप्शन हो गया। पीपल हैव नीदर सिविक सेंस नॉर सेंस ऑफ प्राइवेसी, लोगों में ना सिविक सेंस है ना प्राइवेसी, ये मैसेज नहीं दे रहा वो क्या कह रहा है कि भाई टॉयलेट यूज को हमें एज यू नो एज क्लीनिंग प्रोसेस, सैनिटरी प्रोसेस की तरह उसको समझना पड़ेगा कि टॉयलेट यूज और पिट एम्प्टिंग इज द प्रोसेस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये पॉल्यूट नहीं है, साफ रखता है आपको और आपके एनवायरनमेंट को। तो दिस इज द क्लियर मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज दैट पीपल हैव टू परसीव टॉयलेट यूज एंड पिट एम्प्टिंग एज क्लीन एंड नॉट पॉल्यूटिंग, एंड दिस इज द स्टार्क रियलिटी ऑफ इंडिया। ये जो लिखा हुआ है ये पैसेज में सच है, ये कि लोग ऐसा करते हैं, सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच को बदलना पड़ेगा। तो दैट इज द राइट मैसेज। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल इन्फ्रेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। इन्फ्रेंस क्या है? एक लॉजिकल जो इन्फ्रेंस है जो हम निकाल सकते हैं, लॉजिकल बात जो पैसेज में कही गई है उसको ढूंढना है हमें। तो पैसेज पढ़ते हैं। इन द लास्ट 2 डेकेड्स, पिछले दशकों में, द वर्ल्ड्स जीडीपी, द वर्ल्ड्स ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी हैज इंक्रीज्ड 50%, कि दुनिया की जो जीडीपी है 50% बढ़ चुकी है। वेयर एज इंक्लूसिव वेल्थ हैज इंक्रीज्ड बाय मियर 6%, लेकिन जो इंक्लूसिव वेल्थ है, मतलब गरीबों के, इंक्लूसिव वेल्थ क्या होती है? जो गरीबों के लिए जो गरीबों में यूज़ होती है, तो वो सिर्फ 6% बढ़ी है। तो जीडीपी 50% तक बढ़ गई है, लेकिन इंक्लूसिव वेल्थ जो है, ठीक है, वो सिर्फ 6% ही बढ़ पाई है। इन रिसेंट डेकेड्स जीडीपी ड्रिवन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हैज़ ओनली, मतलब जो जीडीपी ड्रिवन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, हैज़ ओनली हार्म्ड इंक्लूसिव वेल्थ लाइक ह्यूमन कैपिटल। इंक्लूसिव वेल्थ लाइक ह्यूमन कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल लाइक फॉरेस्ट, लैंड, वाटर, ये सिर्फ 6% तक बढ़ पाए हैं, लेकिन जीडीपी ड्रिवन जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो बहुत बढ़ गई है, और उससे क्या हो रहा है? इंक्लूसिव वेल्थ को नुकसान हो रहा है, जैसे ह्यूमन कैपिटल को और नेचुरल कैपिटल को। वाइल द वर्ल्ड्स ह्यूमन कैपिटल विच स्टैंड्स एट 57%, ह्यूमन कैपिटल जो है दुनिया की, जो 57% पे ऑफ टोटल इंक्लूसिव वेल्थ ग्रू ओनली बाय 8%। तो ह्यूमन कैपिटल सिर्फ 8% बढ़ पाई पिछले दशकों में। द नेचुरल हैबिटेट विच इज 23%, जो नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचुरल वेल्थ है जिसको हम बोल रहे हैं नेचुरल कैपिटल है, वो सिर्फ विच इज 23% ऑफ द टोटल इंक्लूसिव वेल्थ डिक्लाइंड बाय 30%, और जो नेचुरल वेल्थ है, जो नेचुरल कैपिटल है, वो 30% कम हो गई है वर्ल्ड वाइड इन द लास्ट 2 डेकेड्स। तो इसमें हमें क्या समझ आ रहा है कि जीडीपी ड्रिवन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं, इंक्लूसिव वेल्थ ड्रिवन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए हमारी। तो व्हाट इज द इन्फ्लुएंस? मोर एम्फोसिस शुड बी लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल कैपिटल, ये कह रहा है वो, ठीक है। द ग्रोथ ड्रिवन बाय जीडीपी ओनली, द ग्रोथ ड्रिवन बाय जीडीपी ओनली इज नीदर डिजायरेबल नॉर सस्टेनेबल।
वेरी गुड. द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तो सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन जो इंक्लूसिव वेल्थ है वहां पे हम लड़खड़ा रहे हैं. द वर्ल्ड नीड्स मोर ह्यूमन कैपिटल अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. ह्यूमन कैपिटल बढ़ने से इंक्लूसिव वेल्थ नहीं, हमें सारी चीज़ों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है. तो ऑप्शन ए और बी बचते हैं. सिर्फ नेचुरल डेवलपमेंट कैपिटल की डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, या जीडीपी ड्रिवन को ना सोच के हमें सस्टेनेबल और डिजायरेबल हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए. सो द ग्रोथ ड्रिवन बाय जीडीपी ओनली इज नीदर डिजायरेबल नॉ सस्टेनेबल. दिस इज द राइट inference from the passage, a logical fact or data that is given in the passage, that is called inference, but this should be laid, this is a assumption कि हमें ऐसा करना चाहिए. So no, I think option B is the राइट ऑप्शन इन दिस पैसेज. तो हमें सिर्फ जीडीपी ड्रिवन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं, हमें इंक्लूसिव वेल्थ जिसमें ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको ध्यान रख के हमें अपने जो जीडीपी को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होंगे अदरवाइज. ठीक है, डिज़ायरेबल भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गरीबों को कुछ नहीं मिलता, अमीरों को मिलता है. और दूसरी बात, सस्टेनेबल भी नहीं है क्योंकि हमारी नेचुरल कैपिटल पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन है. आगे बढ़ते हैं गाइस. द ऑथर सजेस्ट दैट हैबिट्स, ओके, पहले पैसेज पढ़ते हैं. कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है. देर इज नो हार्म इन कल्टिवेटिंग हैबिट्स सो लॉन्ग एज दे आर नॉट इंजूरियस. वो अच्छा, उसने बात शुरू की है कि भाई हैबिट्स होना कोई बुरी बात नहीं है. देर इज नो हार्म इन कल्टिवेटिंग हैबिट्स सो लॉन्ग एज, कब तक, जब तक वो इंजूरियस ना हो, मतलब आपके लिए खतरा ना बने, आपके शरीर के लिए, आपके लिए. सो देर इज नो हार्म इन कल्टिवेटिंग हैबिट्स सो लॉन्ग एज दे आर नॉट इंजूरियस. इंडीड मोस्ट ऑफ अस आर लिटिल मोर देन बंडल ऑफ हैबिट्स. और इंडीड वो सच बात तो क्या है, हम सब सिर्फ हैबिट्स का ही एक बंडल है. टेक अवे आवर हैबिट्स एंड द रेजिड्यूम वुड हार्डली बी वर्थ बॉदरिंग अबाउट. हमारी आदतें हटा लो, जो बचेगा वो किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. वी कुड नॉट गेट ऑन विदाउट देम. हम हैबिट्स के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, मतलब काम कर ही नहीं सकते. दे सिंप्लीफाई द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ. हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमारी मैकेनिज्म ऑफ लाइफ जो है उसको सिंप्लीफाई करती हैं, मतलब हमारी दिनचर्या को ईजी बनाती हैं. दे एनेबल अस टू डू अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स ऑटोमेटिकली विच इफ वी हैड टू गिव फ्रेश एंड ओरिजिनल थॉट टू देम ईच टाइम वुड मेक एग्जिस्टेंस एन इम्पॉसिबल कन्फ्यूजन. सच बात है गाइस, देखो हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमारे से पता नहीं कितने काम जो अपने आप हम करते हैं. सुबह उठते ही मान लो ब्रश करना है, अगर ये हैबिट ना हो आपके, सोचो सुबह उठ के रोज सोचना पड़े कि मैं क्या करूं उठ के, अब पहले ये करूं या पहले वो करूं, पहले पानी पीऊं या पहले ये करूं, पहले काम करूं या पहले नहाऊं, पहले ब्रश करूं या पहले खाना खाऊं. अगर ये हैबिट नहीं बनेगी आपकी तो फिर हर रोज़ ये सोचने में तो फिर सारा दिन इसी में गुजर जाएगा. तो वी आर ऑल अबाउट व्हाट what our habits define, how our habit defines us. Habits define us. So the habits, they enable us to do a multitude of things automatically, जो automatically हम करते हैं. पानी पीना, साफ रहना, खाना टाइम पे खाना, गलत ना खाना, एक्सरसाइज करना, ये हैबिट्स हैं जो हमको रेगुलर एक लाइफ मूड में लाती है, मैकेनिज्म ऑफ लाइफ को ईजी बनाते हैं. विच इफ़ वी हैड टू गिव फ्रेश एंड ओरिजिनल थॉट टू देम ईच टाइम, अगर मैं हर बार बिना हैबिट के हर बार सोचना पड़ता, इट वुड मेक एग्जिस्टेंस एन इम्पॉसिबल कन्फ्यूजन. तो हमारा जीना ही इम्पॉसिबल हो जाता. तो ऑथर सजेस्ट क्या कर रहा है, द हैबिट्स टेंड टू मेक आवर लाइफ्स डिफिकल्ट. नहीं, दे ऐड प्रिसीजन टू आवर लाइफ्स, दे मेक इट ईजियर फॉर अस टू लिव. ये दे टेंड टू मैकेनाइज. मैकेनाइज मशीन नहीं बनाते हमें. मैकेनिज्म और मैकेनाइज में फ़र्क है. मैकेनिज्म होता है उसका पूरा प्रोसेस, मैकेनाइज होता है मशीनरी बना देना. नहीं, तो ये भी नहीं. तो बी और सी में था, दे ऐड प्रिसीजन टू आवर लाइफ्स, दे मेक इट ईजियर फॉर अस टू लिव. यस, सो दे मेक आवर लाइफ्स ईजियर. हमारी लाइफ को ईजी बना देती हैं हमारी हैबिट्स. प्रिसीजन नहीं लाती उसमें, बट दे मेक अस हेल्प अस टू डू मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स. तो दे मेक आवर लाइफ ईजियर. So that is clearly conveyed by the author here. So this is how you read the passages, comprehend each and everything, read between the lines and understand what has been conveyed by the author in the passage. क्यों, क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है. तो आपको ये ध्यान रखना गाइस, ये जो पैसेजेस हैं ये यूपीएससी वाले नहीं लिखते, ये पैसेजेस वो कहीं से उठाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी वाले खुद बनाते हैं. तो अगर आप क्वेश्चन बनाने वाले की साइकोलॉजी समझ गए तो आप कॉम्प्रिहेंशन को क्रैक करना भी सीख जाओगे बड़े आराम से. तो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस. ये थे आपके 2017 के क्वेश्चंस. अब अगले हफ्ते हम 2018 के क्वेश्चंस मतलब पैसेजेस उठाएंगे और वो हम प्रैक्टिस करेंगे. तो अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लग रहा है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स, इन क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट्स के आपको पहले रिकॉर्डेड जो डे 1 पे अवेलेबल हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस दे रहे हैं, अलॉन्ग विद द डाउनलोडेबल पीडीएफ्स एंड
चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया आपको, फिर आपको सेक्शनल टेस्ट दिए हुए हैं और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी दिए हैं टू प्रैक्टिस द सिमुलेशन ऑफ द एग्जाम। उसके साथ साथ आपको वीकली लाइव डाउट सेशंस मिलते हैं जहाँ पे आप अपनी लाइव क्वेरीज पूछ सकते हो अपने हमसे, और आपको बहुत जल्द हम लाइव रिवीजन क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्रीहेंशन वर्क्स इन द एग्जाम। ठीक है, मतलब हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू क्रैक दिस पेपर इन द एग्जाम। तो लेट अस मेक यू 100% यूपीएससी सी सेट रेडी जस्ट अंडर 100 आवर्स। सो अगर आपको हमारा कोर्स अच्छा लगे तो यू कैन जॉइन अस, द लिंक फॉर आवर कोर्स हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, गो चेक इट आउट एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और गाइज अगर आपको इन सेशंस के पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड गेट ऑल these PDFs for free, absolutely free, right? So go get benefited from it. अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है गाइज, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स 8146207241, या आप हमें अपना फीडबैक या अपनी क्वेरी इस एड्रेस पे भी मेल कर सकते हो, दैट इज hello@edutap.co.in। ये www.edutap.co.in ये हमारी वेबसाइट है, लेकिन hello@edutap.co.in ये हमारा ईमेल एड्रेस है। तो यू कैन ऑल्सो ईमेल अस योर queries or your feedbacks for these classes. So thank you so much once again for your precious time, guys. Thank you for your sparing your sharing your time with us, and I hope we are living up to your expectations. So thank you so much once again. Do let us know your feedback in the comment section of the video as well. Don't forget to like the session and subscribe to the channel if you're new here. So God bless you all. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. So stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you. I'll see you next week, guys. Till then, bye bye, take care, have a great day.